तो अभी बजे हैं 10:30। मैंने शुरू किया था शाम को 5:30 को और आई गेस 4 घंटे से मैं नॉन स्टॉप बड़बड़ किए जा रही हूँ। नमस्कार बहनों और उनके भाइयों। सो द फर्स्ट पार्ट टेल्स यू टू स्टार्ट, द सेकेंड पार्ट टेल्स यू टू शेयर एंड थर्ड पार्ट tells you basically how to survive the ups and downs of your journey. So third part is very important. तो इसके कुछ 210 pages है, 210 or 215 or something, but really amazing book to keep going. Every day is a groundhog day. So basically you have to make a daily timetable to stay grounded. Like you don't have to seek for inspiration or motivation. Just keep showing up no matter what. ये motivation कुछ नहीं होता है, इट इज़ छलावा, वो होता ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता है मोटिवेशन नाम की कोई भी चीज़। क्या? तो मोटिवेशन पे जाओ ही मत, डिसिप्लिन पे फोकस करो, कंसिस्टेंसी। क्या बोला तूने? नहीं, पहले क्या बोला? चल, कंसिस्टेंसी पे फोकस करो, दैट विल कीप यू मोर प्रोडक्टिव। ठीक है, तो डेली टाइम टेबल फॉलो करो। सो मैंने मेरे पिछले वीडियो में, इफ़ यू हैवंट सीन दैट, मैंने डेली टाइम टेबल, वीकली टाइम टेबल और मंथली टाइम टेबल का इंपॉर्टेंस पूरा शेयर किया है, मेरा पर्सनल जर्नी और मैं क्या क्या चीज़ें सीखी हूँ उससे, और मैंने अपना कैसे पर्सनल रूटीन सेट किया है वो मैंने उस वीडियो में एक्सप्लेन किया है। सो उस वीडियो में भी मैंने बहुत मेहनत की है। सो प्लीज़ गो वॉच इट, आई गिव इट इन द डिस्क्रिप्शन बिलो और मे बी समवेयर हियर ऑल्सो। सो प्लीज़ go watch it. And yes, so this was the first lesson, that you have to keep showing up. You would build a bliss station. So what is that? Bliss station एक ऐसी जगह है जहाँ पे zero distractions है और आपको जो काम करना है उस काम का vibe है basically. तो if you're a student, you have to eliminate mobile phones, laptops, TVs from your area and put lots of books, sticky notes, inspirational quotes and everything to create that vibe. So that is bliss station. So that is very important for फोकस। सो मैंने भी अपने रूम में वैसे ही किया हुआ है। अभी पहले का मेरा रूम का सेटअप और अब का बहुत डिफरेंट है, और अब का जो सेटअप है मुझे काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर करता है, मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। सो इफ़ यू वांट टू सी माय रूम, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई वुड लव टू शो यू ऑल। इतना कुछ बड़ा ऐसा नहीं है, छोटू सा है, बट उसमें जो चीज़ें हैं वो काफ़ी मिनिमल, क्यूट सी, सिंपल सी है। सो आई वुड लव टू शो यू ऑल दैट। So our next topic is forget the noun and do the verb. So what does this mean? So basically for example से मैं समझाऊंगी इसको सीधा। So if you want to become an artist, so forget that you want to become artist and focus on doing the art. If you want to become a chef, forget that you want to become chef and start doing and keep doing the, what we can say, keep cooking daily, keep experimenting daily. If you want to become a YouTuber, forget that you want to become a YouTuber, create daily, edit videos, shoot videos and everything that needed to become a YouTuber. Focus on that and forget about the title, you know. That is what the topic says and tells. That's it. क्या बोला तूने? Ordinary plus extra attention is equals to extraordinary. What does that mean? So इसका मतलब है कि हम अक्सर है ना बहुत मुश्किल, बहुत अलग, आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ द वर्ल्ड चीज़ पे फोकस करने की कोशिश करते हैं, ढूंढने की कोशिश करते हैं, बट पूरी दुनिया उस चीज़ के पीछे है एंड वी एंड अप मेकिंग नथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। सो ट्राई टू फोकस ऑन सिंपल एवरीडे थिंग्स। हमारे आजू बाजू बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिससे हम इंस्पिरेशन लेके उस पर एक्स्ट्रा फोकस और एक्स्ट्रा अटेंशन हम उस चीज़ को दे दें, तो विल एंड अप क्रिएटिंग समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और हमको रियलाइज़ भी नहीं होगा, हमें पता भी नहीं होगा। Oh my God! Wow! There are a lot of people out there who are focusing on big things. So you can be the one who is trying to focus on small things and making something big out of it. So yeah, focus on ordinary and give extra attention and make something extraordinary. पैसा ही पैसा होगा। Slay your little art monster. So basically, don't let stress, ego or perfectionism ruin your joy or take your creativity down. Because if you love what you do, just do it for yourself and do it because you love it. Don't do it to impress or compete, because that will eventually take your joy away from you. So don't do it because of that. हाय चीज़ ना बोलना बहुत ईजी है बट करना बहुत मुश्किल है, बट सीरियसली यू आर अलाउड टू चेंज योर माइंड। ऐसे हो सकता है कि कल को कोई चीज़ एकदम परफेक्ट लगे तो आज वो नहीं लग रही है, ऐसा हो सकता है और ये गलत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अभी मेरा ही देख लो, पहले मेरा कंटेंट बहुत अलग था, इट वॉज ऑल रिलेटेड टू आर्ट, क्रिएटिविटी, DIY, अपसाइक्लिंग एंड एवरीथिंग, बट नाउ माई कंटेंट इज टोटली डिफरेंट देन दैट, टोटली डिफरेंट, लाइक द नीश इज़ ओनली वेरी डिफरेंट। और मैंने मेरे पुराने वीडियोस डिलीट भी कर दिए बिकॉज नाउ आई थिंक आई फाउंड माई नीश। तो मैंने मेरा मन बदल दिया और कल को जाके ये कुछ और भी हो सकता है। इट्स ओके टू चेंज योर माइंड, इट्स लाइक इट इज़ अलाउड। तो ये कुछ बड़ी बात नहीं है, मानना मुश्किल है, करना भी मुश्किल है, बट ये कोई बड़ी बात नहीं है, इट हैपन्स। Not bad. सो व्हेन इन डाउट टाइड अप। तो इसका क्या मतलब है कि बेसिकली कभी भी कुछ चीज़ का डाउट लगे, माइंड अनस्टेबल लगे या फिर बहुत दिमाग में खिचड़ी मच रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्लीन कर लो अपने आजू बाजू सब कुछ, ऑर्गेनाइज कर लो सब कुछ वापस। भले ही सब कुछ तुम्हें परफेक्ट हर जगह पे दिख रहा है, सारा सब कुछ वापस निकालो, क्लीन एवरीथिंग एंड डू एवरीथिंग अगेन। ये सच में माइंड डिक्लटर करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ये मैं तो
हर 15 दिन में कर रही हूँ ये चीज़, वो सच में बहुत हेल्प करता है। सारा सब कुछ एकदम क्लीन दिखने लगता है, मतलब करते तो हम आजू बाजू क्लीन है पर अपने दिमाग में सब कुछ साफ होते रहता है साइमल्टेनियसली। तो ये हर लड़की रिलेट करेगी इस बात से। सो डू लेट मी नो, अगर इफ़ यू फाउंड दिस रिलेटेबल, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो अगेन। तो मैं बहुत बारी बोल रही हूँ ये चीज़, बट लिखते हैं कितने लोग कमेंट करते हैं, क्योंकि लोग नहीं कमेंट करते यार सच में। बट यार प्लीज़ कमेंट कर दो। यू नो व्हाट, मैंने अभी एक चीज़ रियलाइज़ करी है कि मैंने जब ये बुक पढ़ी थी, एक साल हो गया होगा ऑलमोस्ट इस बुक को पढ़े हुए, मैंने इतनी चीज़ें शायद मेरे को लगा कि मैंने फॉलो नहीं करी जो इस बुक में थी, या मैंने इतना कुछ इंप्लीमेंट नहीं किया। बट अब जब मैं इसे समराइज़ में कर रही हूँ और आप लोगों से बात कर रही हूँ उस बुक पे, तो मेरे को रियलाइज़ हो रहा है कि मैंने बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी इंप्लीमेंट कर ली है और मेरे को पता भी नहीं है। और यही ना बुक्स का कमाल होता है, वो अपने सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो जाती है वंस यू रीड देम, और ये साइमल्टेनियसली आप अप्लाई करते रहते हो आपकी लाइफ में और आपको पता भी नहीं चलता है, कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगता है टू ट्राई टू इम्प्लीमेंट इट। आप बस पढ़ो और आपकी लाइफ में इसका इम्पैक्ट दिख जाएगा। दैट आई लव अबाउट बुक्स। और ये मेरे को अभी हिट हुआ है इतना ज़्यादा, आई एम सो हैप्पी कि मैं बहुत सी चीज़ें कर रही हूँ। जैसे कि ये अभी ये रिसेंट वाली चीज़, मतलब द नेक्स्ट लेसन ऑफ दिस बुक इज़ फ्रेश डीमंस हेट फ्रेश एयर। तो मैं ना आई गेस सम 6 मंथ्स और 8 मंथ्स बैक से मैंने स्टार्ट किया है। मैं दिन के एक बार कभी भी सुबह शाम, मोस्टली शाम में जब मेरा काम खत्म होता है, गो फॉर अ वॉक और आई गो फॉर अ लॉन्ग ड्राइव अकेली। तो मुझे ये बुक करना बहुत ज़्यादा पसंद है। वो फ्रेश एयर जो होती है ना, वो मेरे को इतना हेल्प करती है नेगेटिविटी से दूर रखने में। मतलब मेरे को कुछ भी नेगेटिव फील हो, आई जस्ट डू दैट और मेरे को अच्छा लगने लगता है। और मेरे को नहीं पता था कि मैंने ये कहीं पर पढ़ा हुआ है। आई जस्ट न्यू कि ये वर्क करेगा और मैंने करना स्टार्ट किया। बट नाउ आई रियलाइज कि ये यहाँ से आया है। सो येस, डीमंस लिटरली हेट फ्रेश एयर। यू हैव टू ट्राई दिस थिंग। बात तो सही है। So a last and important lesson in the last part of this video is plant your garden. So what does that mean? So it means that focus on the things that you can control, which is your growth. And social media likes, views, comments are gonna come and go, but you are the soil and you need to remember that. So yes, you are the soil and remember that and focus on what matters. That's it. So yes, here we end this video. I hope you liked it. I hope you enjoyed the trilogy by Austin Kleon. If you do, please let me know in the comment section below. Like करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जिन्हें ये बुक्स पढ़नी चाहिए या जिन्हें ये सब सुनना चाहिए. So if you want to buy this books, please let me know I'll give the link to you all. And मुझे बस बताओ कि ये व्लॉग स्टाइल जो मैंने शूट करने की कोशिश की है, जिसमें आधे से ज़्यादा टाइम तो मैं बैठी ही हूँ एक जगह पे, तो वो कैसे लगा है आपको मुझे बस बताओ। बस अलग अलग एंगल में शूट करने में मुझे तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। तो इफ़ यू लव इट एंड इफ यू वांट मी टू कंटिन्यू इट, प्लीज़ लेट मी नो इन दिस। आई एम तो एंजॉइंग इट। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में एंड आई ट्राई टू व्लॉग बेटर। मेरे हाथ कांपते हैं यार, ये ट्राइपॉड बहुत हैवी है। तो प्लीज़ ऑल्सो सजेस्ट मी एनी ट्राइपॉड जो लाइट वेट हो और जो मुझे व्लॉग स्टाइल शूट करने में हेल्प करे, तो मुझे कमेंट सेक्शन में वो भी सजेस्ट करो। अभी मैंने इतने कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करने बोले हैं, आप क्या क्या कमेंट करोगे देखते हैं। लेट्स सी। चलो बाय बाय।